is indeed a special date, as it was on this date in 1920 when the mother arrived in Pondicherry, her second and final arrival to be with Sri Aurobindo. जिस कुर्सी पे और जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं उस पे स्वाधीन भारत के महान नेता पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सुशोभित किया था। और आज अगर भारत यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग है, इसका बहुत महान श्रेय सरदार वल्लभ भाई को जाता है। All our prayers are with Modi ji and you, that the Divine Mother gives you the light, gives you the strength to lead India in these difficult times and to make India a leader in the world in every field. What we need is our concrete actions to build the new India of Sri Aurobindo's and Swami Vivekananda's dreams. That is what will be our real offering and celebration. And this is possible only on a strong foundation of true nationalism. I am quoting the words of Sri Aurobindo. You, the youth, are the instruments of God to save the light, the spirit of India. You need to develop 4 qualities for this great endeavor: faith, selflessness, courage, and original thinking. You have to work for this great and ancient nation because India has to save the world. The time has now arrived for our motherland, where nothing is dearer than her service. Work that she may prosper, suffer that she may rejoice. All is contained in that one single advice. These are the words of Sri Aurobindo. इस प्रयास में मैं कहना चाहूँगा आपको कि सारी श्री अरबिंदो सोसाइटी, हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारी क्षमता है, आपके साथ जुड़े हैं और मोदी जी के साथ जुड़े हैं कि जो आपने ये लिया है बड़ा अभियान नए भारत का, उसमें जो भी हम योगदान कर सकते हैं हम सब मिलकर खुशी से करेंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो कि हमने हमारे इनिशिएटिव का नाम भारत हमारी माता दिया है, इंडिया आवर मदर। वी आर कॉन्शियसली इन्वॉल्विंग द यूथ। अ वेरी सेंट्रल प्रोजेक्ट इज स्वर्णिम पुदुचेरी, Golden Pondicherry. We would like to make Pondicherry a model of harmony and oneness, breaking all divisions of faiths, religions, castes, gender, an example for the rest of India and the world. And Pondicherry is indeed ideal for this effort and endeavor, in a collaborative effort to create a golden Pondicherry for the sake of India and a golden India for the sake of humanity.
24th of April, sir, is a date which is very important to us. It is a date of the final victory of truth over falsehood, as the mother has said. It is a day when people ask the mother, what is the importance of these certain dates that we talk about? What is so important on these particular dates that people come from thousands of miles all over the place just to be here on that date? Her answer was very beautiful, sir. Her answer was that on these dates, there is a concentration of divine forces, a definite, palpable concentration of divine forces. Divine forces that come close to us to help the elevation of consciousness of mankind at a universal level. So these are moments where there is a great concentration of divine forces. See, on the one hand, there are divine forces and there are anti-divine forces. Anti-divine forces are not there just sitting idle, they oppose the divine forces. So we have to be very conscious of the presence of divine forces, because we know that we stand on the other side and not on the dark side. So these days, the mother said, when we are open and accept and are conscious of the fact there is a concentration of divine forces, it really is, and you connect yourselves to that. We have, sir, over 300 centers all over India. And on these days, each and every center is on the same wavelength, that this is a day which is God's day. Mother created the society for a specific purpose. And there is a specific mandate given to the society in our Memorandum of Association. Just one mandate, and that is to spread the message of Sri Aurobindo far and wide, through every possible manner, in any multifarious activity that we can have. Except, only a difference is that our attitude should be totally pure and dedicated and surrendered to the mother. Every activity succeeds, because this is an offering to the divine. Society was created as an offering to the divine, and that was the mandate given to all of us who are working for the divine in all our 300 centers. And Jnana will lead you to Bhakti, and Bhakti will lead you to Karma, and Karma will lead you to Bhakti. At one point, all will come together, as the Gita also says. And that is the point of total enlightenment and peace that we talk of. Mother created society for a specific experiment that she is carrying out in the ashram. We are a spiritual body working in a material world, and there we have to succeed. Sri Aurobindo has written 30,000 pages. What has he said about the Indian Constitution? We have taken, after a research, quotations from Sri Aurobindo which are relevant to the time, that as pointed out by Nandlal Bose. And it's beautifully compiled book that finally came out with a lot of aspiration and love with us. It is a research first of its kind ever done. Sri Aurobindo is writing as an ocean of beauty, of wideness, of depth. To choose from that and to connect it to what the Sri Aurobindo Constitution was not an easy job. आज की सभा को संबोधित करना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो श्री अरविंद के संदेश के लिए अपना जीवन जीते, श्री अरविंद के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, भारत के युवाओं को श्री अरविंद के संदेश से प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, इनके सामने भला मैं कैसे श्री अरविंद पर बात कर सकता हूं। श्री अरविंद के जीवन कवन, उनके संदेश, उनका जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ बुला हुआ है, वो सारी चीजों को अगर एक वाक्य में समेटना है तो कोई कैसे समेट सकता है। भारत की आत्मा को समझना है,
तो श्री अरविंद को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। श्री अरविंद को ध्यान से पढ़ लोगे तो भारत की आत्मा का परिचय सबसे अच्छा हो जाएगा और भारत को आप आत्मसात कर सकते हो। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जो जियो कल्चर है, जो संस्कृति के आधार पर बना है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ऐसा देश हमारा भारत देश है। और ये बात श्री अरविंद के हर वक्तव्य में से आप चाहे किसी भी विषय पर के हो, इसको लेकर चलते हो, इसको प्राप्त करते हो। और अगर भारत को जियो कल्चर कंट्री के नाते देखने की शुरुआत करेंगे तो आज की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। बॉन्डिंग अगर कोई है तो ये संस्कृति है, भारत की आत्मा संस्कृति है। ये बात जब आप श्री अरविंद को पढ़ोगे तो तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी। और पर श्री अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है भारत माता के लिए, मैं अंत में बात करूंगा, वो इसी के आधार पर की। श्री अरविंद भारतीय संस्कृति की चिर पुरातन चेतना की नदी का एक जो प्रवाह है, हजारों साल से विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार की एक संस्कृति बह रही है, एक नदी बह रही है। ये नदी को श्री अरविंद ने एक ही जीवन में नई चेतना, नई गति, नई ऊर्जा और नई दिशा भी प्रदान करने का काम किया। और ऐसे समय में किया जब चहुओर अंधकार था, कोई आशा का किरण दिखाई नहीं पड़ता था, देश गुलामी में रहा था, अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त कितने मजबूत आशावाद के साथ उन्होंने भविष्यवाणी भी की और भारतीयता का महिमा मंडन भी किया। मित्रों, जब तक श्री अरविंद को, इनके विचारों को हम नई पीढ़ी को नहीं सौंपते हैं, नई पीढ़ी को उसमें जानने की उत्सुकता नहीं पैदा करते थे, मुझे लगता है कि हमारा 150वीं वर्ष है जो श्री अरविंद का, उसको मनाने के सारे उद्देश्य वहीं के वहीं रहे। मेरा सभी से आग्रह है, आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। शायद मैं यहां ना आया तो मुझे मालूम भी नहीं होता कि इतना सारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मगर थ्रस्ट देने का एरिया युवा है, थ्रस्ट देने का एरिया किशोर की पहले की, किशोर अवस्था की पहले की आयु है। मुझे विश्वास है कि 150वीं जयंती मनाने का भारत सरकार और श्री अरविंद सोसाइटी ने जो निर्णय किया है वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफल होगा। श्री अरविंद जब 75 के हुए, देश आजाद हुआ, और श्री अरविंद जब 150 के हुए, तब देश की 75वीं सालगिरह होने जा रही। मुझे लगता है ईश्वर ने, नियति ने संकेत श्री अरविंद के विचारों के माध्यम से, श्री अरविंद के विचारों के तत्वाधान के ऊपर बनाई गई नीतियों के आधार पर ही उनकी कल्पना का भारत हो सकता है, इसलिए ही किया होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो निर्णय किया है, ये निर्णय के पीछे 3 मुख्य बिंदु हैं। जाने माने सभी स्वतंत्रता सेनानी और अनजान कई स्वतंत्रता सेनानियों को फिर से एक बार हमारी नवी पीढ़ी के मानस पटल पर स्थिर करना और इसके माध्यम से देशभक्ति के संस्कार फिर से पुनर्जीवित करना, एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है 75 साल के में हमारी जो सिद्धियां हमने प्राप्त की है वो भी देश भर की 130 करोड़ की जनता तक पहुंचाना। और तीसरा उद्देश्य है 75 साल से 100वें साल तक 25 साल देश के अमृत काल मानकर हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, हमारे
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाए रखते हुए विश्व में हर जगह पे, हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, इसका संकल्प लेकर एक पूरी पीढ़ी 25 साल तक काम करे। वो हमारे 75 साल का, और ये 3 उद्देश्य के आधार पर ही आजादी का अमृत महोत्सव बना। देश के लिए जान देने का मौका तो हमें मिल ही नहीं सकता, परंतु देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और आज 75वें साल में, श्री अरविंद के 150वें साल में, हर व्यक्ति ने संकल्प करना चाहिए कि हम देश के लिए जिएंगे। भारतीयता की व्याख्या को 20वीं शताब्दी की भाषा में अगर किसी ने करने का काम किया है तो श्री अरविंद और विवेकानंद दोनों ने ही किया है। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए वो पथदर्शक है, वो हमारा आज भी गाइड कर रही है। स्वराज में सबसे महत्वपूर्ण शब्द स्व है। स्वभाषा, स्व संस्कृति, स्वधर्म, सारी चीजों में स्व है, तभी जाकर स्वराज संपूर्ण होता है। स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पावर से नहीं है। अंग्रेजों के पास था, आज हमारे लोगों के पास है। ये स्वराज नहीं है। ये देश भारत की मिट्टी की सुगंध में से निकले सिद्धांतों के आधार पर चले। ये देश भारत की संस्कृति के बनाए हुए अवधारणाओं के आधार पर चले। ये देश यहां की महान परंपराओं को आगे लेकर चले। वो स्वराज का मतलब है। श्री अरविंद ने स्वराज का कंसेप्ट ले डाउन करने में कोई कोताही नहीं की, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बड़ा स्पष्ट था। और इसीलिए वो मानते थे कि भारत में वो शक्ति है जो पूरे विश्व को दैदीप्यमान कर सकती है, सारे विश्व का कंफ्यूजन दूर कर सकती है। राष्ट्रवाद को पश्चिम की व्याख्या से देखेंगे तो संकुचित लगेगा, मगर राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देखेंगे तो समग्र विश्व का कल्याण करने का एक यज्ञ दिखेगा। राष्ट्रवाद जिस देश की संस्कृति समग्र विश्व का सोचती हो, अंतरिक्ष तक का सोचती हो, पशु पक्षी जल और वनस्पति तक का सोचती हो, इसका राष्ट्रवाद समग्र देश के लिए है। वो वसुधैव कुटुंबकम में से उपजा हुआ, जन्मा हुआ राष्ट्रवाद होता है। और इसकी व्याख्या सबसे पहले श्री अरविंद ने करी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, श्री अरविंद के अनुयायियों को बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरे भाषण के बाद देश की नई शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ना। आपको हर जगह पे श्री अरविंद के शिक्षा के विचार अपने आप दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इस देश को जो जानते हैं वो सभी जानते हैं यही हमारा राजमार्ग है, यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद के विचारों के आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ जुड़े हुए लोगों को कि आप इस देश के युवाओं को फोकस करिए, आज इस देश के किशोरों को फोकस करिए और आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को फोकस करिए। अगर ये 3 चीजें श्री अरविंद के विचारों के युक्त हो जाती है, ये तीनों क्षेत्र में श्री अरविंद के विचार नीचे तक, हर राज्य की भाषा में हम नीचे तक परकोलेट करने में सफल होते हैं, तो श्री अरविंद का कल्पना का भारत बनना मुश्किल नहीं है। कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता इसको, ढेर सारे लोग चाहिए और ढेर सारे लोगों को पहले उनकी कल्पना को समझना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्वप्न के साथ जुड़ सकते हैं। एक जीवन में 100 जीवन जितना काम करे बगैर, यश की कोई अपेक्षा रखे बगैर, युगों युगों तक देश उस रास्ते पे आगे चल सके, इस प्रकार का हमारे लिए वो पाथे छोड़ कर गए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी भूल है। उनके विचार देश के लिए बहुत बड़ा धन है, देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं अंत में यहां पर जो श्री अरविंद के विचारों को अपने जीवन के काम के साथ जोड़े हुए लोग बैठे हैं, वो सभी को मन से बहुत विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने भी श्री अरविंद के विचारों को नीचे तक पहुंचाने के लिए जो अपना जीवन कार्य बनाया है, प्रभु इसमें आपको सफलता दे। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, मैं बचपन से जन्म से आशावादी व्यक्ति हूं।
मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, शायद हमारे जीवन काल में ही, हो सकता है हमारे जीवन काल में न हो, बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, कम आयु के बच्चे बैठे हैं, उनके जीवन काल में श्री अरविंद की कल्पना का भारत हम निश्चित देखेंगे, इसका मुझे विश्वास है। For Sri Aurobindo, India was not just a piece of land. India is not just a piece of land. It is the Bharata Shakti, the living energy of great spiritual conception, and the fidelity to it is the very principle of her existence. जय 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 हे